my name is Gaurav Agarwal. I'll give you a brief introduction of mine. I'm currently working as Sarthak ji introduced me. I'm currently working with an organic food brand as the Vice President Sales. I was introduced to the concept of Vestige. मुझे Vestige के बारे में लगभग 11 महीने पहले बताया गया on the 8th of September. In fact, मेरा birthday आने वाला है Vestige का. 8th of September 2019 was when I heard about it. इनफैक्ट मैंने उससे पहले भी 6-7 साल पहले भी वेस्टीज के बारे में किसी से जिक्र हुआ था एंड somebody tried to tell me about the opportunity, but you know there is a difference between hearing something and understanding something. So 8th of September I consider to be the first brush with Vestige when I sat down to understand what the concept was all about. What did it have an offer for me? Why is it this opportunity is coming back again and again with different people? Why is the cosmos playing this trick on me? So when I got the opportunity to understand what it was all about, it actually gave me an extra dimension into whatever I was doing. I confess that, currently in the space that I am in, the kind of designation that I enjoy, the perks that come with it, the name and fame that comes with being a vice president of the leading organic food brand in the country, I think it's phenomenal. So अगर मैं वैसे अपने आप को professionally देखूं, I'm in the best sphere of my life. Income wise also, professionally wise, accolades wise, traveling across the globe. Now we sell our brand in about 12 countries, so I get the opportunity to travel there every now and then. So all of that is happening. In spite of that, 11 months back when Vestige struck, it actually gave me a dimension that I still have time left in the day, and I think जब तक मेरे हाथ पांव नाक मुंह बराबर चलते हैं तब तक मुझे कुछ ना कुछ और करते रहना चाहिए. You see, each one of us has their dreams which are connected with our current realities. If somebody goes for an interview and they ask them, what do you expect? आपकी expectation क्या है? Although उन्होंने देना नहीं होता वो, फिर भी वो पूछ लेते हैं formality के लिए कि आप क्या चाहते हैं, आप बताइए. तो उसमें how do we do our calculation? We do our calculation. अच्छा, मेरी गाड़ी की EMI इतनी है, मेरे घर की EMI ये है, बच्चों के खर्चे ये हैं, मेरे को घर चलाने के लिए इतने पैसे चाहिए, इसके ऊपर अगर 5-10 हज़ार रुपए और आ जाएंगे तो I'll be home. तो सर मेरी expectation है 50,000 rupees. And he's like, ठीक है, तो फिर हम 30,000 देते हैं आपको. But the problem is कि हमने इस वाली calculation के अंदर जो हमें नहीं भी मिलनी थी, but हमने जो अपने मन के अंदर भी calculation करी, we never play around with the contingencies, we never take them into effect. What happens, in case a pandemic strikes? जैसे पिछले 5 महीने के अंदर इतने सारे लोग जो रो धो रहे हैं कि हमारी जॉब चली गई या हमारे सैलरी कट हो गई या एक क्राइसिस आ गया है, ये हो गया, वो हो गया. ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले फूक फूक के अपना गोल लिखा था, जिन्होंने बहुत सोच समझ के ये वाली बात तय की थी कि मेरे को अगर 49 चाहिए तो 50 मांग लो, सामने वाला अफेंड ना हो जाए. अरे हद है. In case we do not evaluate ourselves well, we cannot blame God or the circumstances or the opportunities around us कि हमारे को तो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा. तो मैं ऐसा नहीं हूँ. जब मेरे को मांगने का मौका मिलता है तो मैं जी खोल के मांगता हूँ. I want to travel business class my entire life. I want to travel all the countries that are existent, even the ones which are forbidden. मेरे को हर जगह जाना है. मेरे को 5 stars के अंदर रहना है हर जगह पे. मेरे को जाके Airbnb नहीं ढूंढने. I want that when my children grow up and they pick out whichever college they want to go to, I should not be able to say कि बेटा ये scholarship वाला college है, इस पे try कर ले. I should be able to give them the freedom. I should be able to give the freedom to my parents or my wife to decide what they want to do. They want to pursue their career, more than welcome. They want to retire and enjoy their life, I should be able to give it to them. I do want certain basic luxuries in my life. I always dreamt of having a house with a swimming pool, and I'm proud that I'm living in one now. And I want similar houses in different parts of the country and different parts of the world as well. Why not? I can, aim करने के लिए मेरे को कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई मेरी सोच के ऊपर बंधक नहीं बांध के बैठा हुआ. And that's why, that Pandora's box was opened on the 8th of September 2019 when this opportunity knocked on my door yet again. मैंने यहाँ पे काम करना शुरू किया. I got the privilege of working with one of gem of friend and a mentor, Mr. Gulshan Gulati. We both got together and we thought we'll work on it like a team. The first month that we basically spent into understanding how this works and what we need to do. Every profession would require a degree of adaptability. एक डॉक्टर प्लम्बर का काम नहीं कर सकता और प्लम्बर डॉक्टर का काम नहीं कर सकता. हर काम के लिए डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है, एक डिफरेंट माइंड सेट चाहिए होता है. तो हाँ, 1 महीना 2 महीना लगा हमारे को भी दोबारा से अपने आप को रीप्रिपेयर करने के लिए, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग अराउंड अस एंड व्हाट वी वर डूइंग इन आवर प्रोफेशनल स्पेस. इस वाली स्पेस के लिए तैयारी करनी थी.
तो पहले महीने की इनकम 2503 थी, और बीच में एक ऐसा महीना आया लास्ट मंथ जहां पे हमने 2 लाख रुपए की इनकम भी टच कर पाई. आई डू नॉट फाइंड एनी अदर प्रोफेशन विच गिव्स मी एन 80% इंक्रीमेंट, 80 times increment within 10 months. And that too at the time when, as Sarthak ji suggested, when the pandemic is actually pushing people to the edge, मैं ये वाली freedom enjoy कर पा रहा हूँ. My income is anyways, coming to me. Apart from that, I'm generating an extra residual source, and that is what I'm enjoying to the hilt. This is adding to my bank balance. This is adding to my luxuries. This is, taking away the tension lines that I have. It's not just that this is the first time that I've heard about this opportunity, and मैंने पहली बार इसके बारे में सुना, और it was love at first sight. I've had my love at first sight about 16 years back. I was 20 years old. तब मैं एक third year engineering का student था, जब पहली बारी direct selling को जानने का मौका मिला था. तब शायद मेरा aim ये था कि मैं pocket money कमा लूं और इतने पैसे हों कि Saturday Sunday को चंडीगढ़ तक जा सकें, क्योंकि वहाँ पे लड़कियां बड़ी सुंदर हैं. That was the only aim being a college student, कि मेरे को यही करना है कि इतने पैसे हों कि Saturday Sunday चंडीगढ़ जाओ. That's it. But because of the process, because I got surrounded with good people, good guidance, and I was personally very inquisitive. In case there is somebody, in case there's anybody who even I do not have an access to, जिसको मैं जानता नहीं, जिसको सिर्फ मैंने फोटो देखी है, पर अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो यहाँ पे पैसे कमा रहा है, तो रास्ता जरूर है. और मैं बुद्धू नहीं हूँ कि मैं रास्ता समझ नहीं पाऊंगा. अगर कोई समझाएगा तो मैं बिल्कुल समझ जाऊंगा. So in my first stint also, when I was a third year engineering student, when I did not have any professional accolades or anything whatsoever to back me in this business, then also I managed to earn about 3 crore rupees out of this system. After those 3 crores के अंदर मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी, एक Hyundai Accent CRDI. When I was in college, I went for my final year examinations in my first car. Bought my second car just before I was to get married, because it was a love marriage. मेरे पापा ने कॉलेज जाते समय में बोला था कि अगर इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो फिर अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, तो हमने इंजीनियरिंग जाके लड़की ढूंढ ली और हमने उसी से ही शादी करी. When I got married, I wanted to invite her into the house like a princess, and for that I bought a new car, a Skoda Elora. And मैंने अपनी थर्ड कार खरीदी, एक Renault Duster. So these 3 cars, इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स करे, और ये सब 3 करोड़ रुपए कमाया. उसके कारण बहुत सारे पैसे आए, जिसके कारण मैं इन्वेस्टमेंट्स कर पाया. I could get rental incomes from n number of sources, and also it gave me a lot of caliber and a lot of confidence, which actually got me to the position where I am professionally today. तो अगर आप कुछ भी अपने लिए सीख कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपको सब कुछ दे सकती है. इन केस यू सीकिंग मनी, yes, there is plenty of money involved. If you are hungry enough, you can earn as much as you want. अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, स्किल सेट लेना चाहते हो, observe people. In case you observe more people, these people are fighters. अगर ये फाइटर कुछ भी कर रहा है, अगर आप उसको देखोगे और उसके एटीट्यूड का एक अंश भी लेके अपने अंदर आ पाए, if you can even gather a percentage of what these people are doing and how they do it and how passionate they are about it, I'm sure your professional career is going to skyrocket. आपकी नीड्स कुछ भी हो सकती हैं. आप अपने लिए बड़ा घर चाह सकते हो, आप अपने लिए बड़ी गाड़ी चाह सकते हो, आप विदेश यात्राएं चाह सकते हो, आप चैरिटी करना चाह सकते हो. व्हाटएवर बी योर मोटिवेशन, आपकी जो भी मोटिवेशन है, उसका सोर्स यहाँ पे अवेलेबल है. द ओनली थिंग दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन परहैप्स आस्क्स अस फॉर इज वन, डू यू हैव क्लियर गोल्स? क्या आपको पता है जाना का? अगर आपको पता नहीं है तो बात खत्म करो. इतनी देर तक 700 लोग क्यों जमे बैठे हो जब ये पता ही नहीं है आपको कि जाना का है? So do you have clear goals? Do you have defined targets? And not because of the circumstances that you're surrounded with, but where you actually want to be. Do you have those clear set goals? Secondly, are you coachable? Are you willing to learn? या अगर आप इस एटीट्यूड से बैठे हो कि मेरे को तो सब कुछ आता है, अरे इसमें तो करना ही क्या है, 4 लोगों को बताना, 10 लोगों को बताना, दोस्त इतना सिंपल होता तो कोई भी इंसान आज की डेट में साइकिल पे नहीं बैठा होता. तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिफरेंट माइंडसेट है, बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हम वैसे भी अगर किसी जॉब को करने के लिए जाते हैं, हम 12 साल की पढ़ाई करते हैं, फिर 4 साल की अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, उसके बाद भी उनकी ज्वाइनिंग के बाद भी इंक्यूबेशन होती है, फिर वो 30 दिन तक धक्के खा खा के काम करते हैं और उसके बाद जाके उनको उनकी पहली सैलरी मिलती है. आई थिंक अगर मैंने यहाँ पे 1 महीना सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने में लगा दिया, दैट इज टू लेस एन इन्वेस्टमेंट. आप इस बात को सोच के देखिएगा कि दिस इज नॉट प्राइमरली अबाउट दिस वेंचर और दैट वेंचर, ये आइडिया या वो आइडिया, या ये वाला काम बढ़िया या वो वाला काम बढ़िया. इट इज अबाउट अ माइंडसेट. यू कुड बी एन एन एंटरप्रेन्योर विद एन एम्प्लॉय माइंडसेट. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो जिसका एम्प्लॉय माइंडसेट है, तो आप एक दुकान खोलोगे और वो आपकी जनरेशन तक दुकान उसी साइज की रहेगी. आप पहले शर्ट में वहां पे बैठते थे, जब आप यंगर थे, धीरे धीरे आप बनियान में आ जाओगे और पेट निकलना शुरू हो जाएगा.
लेकिन अगर आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, आप और दुकानें खोलने की कोशिश करोगे, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करोगे। सिमिलरली यू कुड बी एन एम्प्लॉय विद एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। अगर आप एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय माइंडसेट से ही कर रहे हो, तो आप 5 बजे का इंतजार करोगे, घर आने की जल्दी करोगे और बाद में रोगे कि इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा। पर अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एक माइंडसेट ग्रोथ का बना हुआ है और आप एक नौकरी के अंदर भी हो, तो आप छलांगे मारते मारते ऊपर तक पहुंच जाओगे। आपके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बाकी सारे लोग वाला काम नहीं कर रहे। तो अपने आप को बचाइए इस वाली चीज से कि जो मर्जी काम करिए, जैसा मर्जी करिए, लेकिन डू इट विद एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। गिव योरसेल्फ द ग्रोथ। जब हम वो देखते हैं 4 क्वाड्रेंट्स बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, इट वेरी क्लियरली टेल्स अस कि एम्प्लॉइज होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, बिग बिजनेसमैन होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन यू आस्क देम कि इन दोनों साइड के अंदर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ यही निकल के आता है कि राइट हैंड साइड में लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लोग कम पैसे कमाते हैं। बट अगर मेरे नजरिए से देखो तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता सकता हूँ डिफरेंस कुछ और है। राइट हैंड साइड में लोगों के पास समय है, the businessman and the investors have the time to think about n number of different things, whereas the people who are employees or self employed, they are too engrossed कि अगर उनके पास ways of living, उनका basic survival भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका दिमाग खोज ही नहीं पाता कि कुछ और करा जाए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। आप सोच के देखिए, टाटा इस फ्रीक्वेंसी से नए नए बिजनेसेस में एंटर कर जाते हैं, अंबानी इतने फ्रीक्वेंसी से इतने सारे बिजनेसेस में एंटर कर जाते हैं, और यहाँ पे एक इंसान है कि वो 20,000 के ऊपर रोता ही रह जाता है, वो अपने लिए 2,000 रुपए के लिए एक्स्ट्रा इनकम नहीं ऐड कर पाता। इट इज ओनली अबाउट द माइंडसेट, नथिंग एल्स। कोई भी गुब्बारा अपने रंग के कारण ऊपर नहीं जाता, गुब्बारा इस कारण से ऊपर जाता है कि उसके अंदर भरा क्या हुआ है। एंड आई रियली विश कि जितने लोग हमारे साथ, ऑल द पीपल हु हैव बीन बीन अ पार्ट ऑफ दिस webinar, who have understood this concept, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, तो rather than looking at the color of the industry, color of the organization or color of the opportunity, look at what's inside you. In case you are able to figure out what's inside you, sky is the limit, my friend. मैंने जैसा आपको बताया कि 2500 रुपए से स्टार्ट करी थी पिछले साल, और अभी तक की इनकम 2 लाख रुपए तक महीने की पहुंचा पाए हैं। मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि मैं आपको ये करके दिखा दूंगा 2021 8 सितंबर, जब मेरे 2 साल इस इंडस्ट्री के अंदर कंप्लीट होंगे, मेरा चेक 20 लाख रुपए से ऊपर होगा। आप भी अपने आप से इवैल्यूएट करिएगा। आज जब हम यहाँ पे स्लाइड देख रहे हैं कि सिद्धार्थ सिंह जी 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, पवन मलिक जी 60 लाख रुपीस कमा रहे हैं, ये जो आपके दोस्त यहाँ पे जिनकी वंडरफुल टेस्टिमोनियल्स, व्हाट ब्यूटीफुल पीपल, कितने अच्छे से उन्होंने वाली बात बताई। कोई 15,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है, कोई 20,000 रुपए कमा रहा है, वट। आप इनको आज के हिसाब से इवैल्यूएट मत करो, ना इनको जो 20,000 कमा रहे हैं, ना उनको जो 60,000 रुपए कमा रहे हैं। आप इस बात से इवैल्यूएट करो, जब आप अपने हिसाब से अपने ड्रीम इनकम पे पहुंचोगे, इनके पास इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, सोच के देखोगे ये कहां पे पहुंचे होंगे उस समय पे। और अगर इससे थोड़ी सी भी एक बेल रिंग होती है, तो आज की डेट में अपने आप को रजिस्टर करिए, गेट स्टार्टेड। यू नो, द मोमेंट यू रजिस्टर योरसेल्फ, द मोमेंट यू मेक योर फर्स्ट परचेज, यू टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एंडोर्सिंग कि मैं बड़ा बनना चाहता हूं। अगर आपने पहला कदम उठाने में बहुत समय लगा दिया, तो भगवान बोलेगा चलो नेक्स्ट, अगला आ जाओ। एंड ऐसा मौका भगवान को ना दीजिए, बाद में कोसने का कोई फायदा नहीं। भगवान पलट के बोल देंगे मौका दिया था तब तू सो रहा था। ठीक है। एंड आई अगेन टेक इट एज एन एक्सट्रीम प्रिविलेज टू बी इनवाइटेड ऑन दिस फोरम। थैंक यू सार्थक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने 36 विदेश यात्राएं अभी तक अपने पूरे परिवार के साथ कंप्लीट करी। बहुत सारी खुशियां यहाँ से मैं छोटी छोटी अपने लिए बटोर पाया हूँ। वेस्टीज में आने के बाद मैंने भी अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई सार्थक जी, जिसके अंदर एक मैकबुक प्रो था, जिसपे मैं ये वाला वेबिनार आपके साथ मिल पा रहा हूँ आप लोगों से। There was I wanted to gift my parents iPhone, these iWatches on their anniversary. I could do that. I gifted my wife a ring. पता नहीं कितने पिछले 5-6 सालों से मैंने उसको बर्थडे पे कुछ भी नहीं दिया था सिवाय आशीर्वाद और दुआओं के। तो इस बारी when I gave her a ring, that was a big addition. It's not that I could not do it earlier. It's just that now I have more freedom of choice. अब मेरे को पता है ये वाला पैसा अगले महीने दोबारा आना। अगर इस बारी रिंग ले भी ली और एक मुस्कान आ भी गई तो कोई बात नहीं, पैसा थोड़ी ना खर्च हुआ, वो तो दोबारा आ जाएगा। So that's pretty much it. Life is very, very comfortable. It is very, very good. And I hope it continues to shine like this. And it is an extreme privilege to be working with gentlemen like yourself and the team that we have here, Sumit ji, Nishank ji, Akriti ji, Aparna ji, all of you people, you actually, create that kind of an environment which everybody needs to excel. वो कहते हैं ना कि a person is the average of the 5 people he spends most of his time with. I am very, very glad that I'm in good company. So thank you so much, Sarthak ji, for this opportunity.